Hello everyone, a very warm welcome to my channel Success Drivers by Deepti. In my today's video, we are going to learn about B.Ed first year syllabus of English. So here we are going to begin with the second unit, and the name of the unit is Learner Centered Approaches and Methods of Teaching. So let's begin here without wasting much of our time. So the first thing here we are going to study is the inductive method. Inductive method का क्या मीनिंग होता है वो सबसे पहले जान लेते हैं. कोई भी एक ऐसा मेथड जिसमें हम बच्चों को कहते हैं कि डिस्कवर करें वो अपने आप से सब कुछ, सारे प्रिंसिपल, सारे लॉज अपने आप से डिस्कवर करें. What we are doing as a teacher is we are just providing with lots and lots of examples, concrete examples to the students so that they are able to form some kind of a law from that example. So here what is inductive method according to Keynes? Keynes says inductive method is to establish the laws on the basis of examples. Exactly same बात कही है Keynes ने. Keynes ने क्या बात कही है कि हमें क्या करना है, we have to give lots and lots of examples to the students so that they are able to form and establish some kind of a law with the help of these examples. Coming to the second point here, while adopting this method, the students are required not to accept the already discovered things. यहाँ पे बच्चों को समझाया जाता है कि हमें already discovered जो principles होते हैं उनको हमें follow नहीं करना है, हमें वो principles और laws खुद form करने हैं. क्यों form करने हैं? ताकि हमें समझ में आए how are these principles discovered in actual. तो अभी हम क्या करेंगे? Being a teacher, we have to give lots and lots of concrete examples to the students ताकि वो उसमें से क्या कर सके, कोई ना कोई एक कंक्लूजन डिराइव कर सके और उस कंक्लूजन की हेल्प से वो क्या कर सके, एक प्रिंसिपल या फिर एक लॉ को फॉर्म कर सके. सो दिस इज एक्चुअली अ डिस्कवरी काइंड ऑफ अ मेथड. यहाँ पे बच्चे की इनोवेशन स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स और उसकी डिस्कवरी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है. सो दिस इज द इंडक्टिव मेथड. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इंडक्टिव मेथड को फॉर्म कर सकते हैं, एक क्लास में परफॉर्म करवा सकते हैं. So here the first step is observation. यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल्स देने के बाद बच्चों को क्या समझाया जाएगा, that they have to observe the examples. क्या उन्हें समझ में आता है with the help of those examples. तो उन्हें क्या करना है, barely उन्हें observe करना है उन examples को. The second point is analysis. Analysis करने के लिए बच्चों को क्या करना है, they have to use their skills, they have to use their knowledge. So यहाँ पे अब बच्चे जो है वो क्या करेंगे, observation के तुरंत बाद वो करेंगे analysis. वो analyze करेंगे कि उन्हें क्या समझ में आता है with the help of those examples. The third thing here is generalization. अब उसको जब बच्चे को बहुत सारे examples दिए जाएंगे और उसमें वो कुछ ना कुछ common points find कर लेगा, तो ऐसे में बच्चा जो है वो generalization करना सीख जाएगा कि हर क्वेश्चन में क्या होता है, whenever we are putting a plus sign and we are adding it, तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा ही आंसर आता है as compared to the numbers on the LHS. तो इस तरीके से बच्चे कुछ ना कुछ derivations जो है वो find कर पाएंगे with the help of the process of generalization. The next is verification. बच्चा जो है और examples लेगा, खुद से एग्जाम्पल्स क्रिएट करेगा ताकि वो क्या कर सके, वेरीफाई कर सके, और लास्ट में वो क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा इसकी, सो दैट ही डिराइव्स अ पर्टिकुलर कंक्लूजन फ्रॉम दैट particular example. So this is the way we are going to carry an inductive method in our classroom if we want to. So coming to the merits and the demerits of a इंडक्टिव मेथड. तो मेरिट्स पहले सबसे पहले स्टडी करते हैं कि क्या उसके प्रॉस है. सो इंक्रीजेस द प्यूपल टीचर कॉन्टैक्ट. इसमें क्या होता है, बच्चे को बार बार टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इससे क्या होगा, प्यूपल और टीचर का जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे. द सेकेंड पॉइंट इज डेवलप्स द साइंटिफिक एटीट्यूड. बच्चों के अंदर क्या डेवलप होगा, एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा. अब यहाँ पे साइंस कहाँ से आ गई, जब हम लोग एक क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो साइंस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि साइंस जो होती है वो मेजरेबल होती है, इवैल्यूएबल होती है, ऑब्जर्वेबल होती है. इसी तरीके से जब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग यही सब पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड द रीजनिंग स्किल्स. बच्चों के अंदर क्या होगा, जब बच्चे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे उनके थ्रू वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे और कुछ ना कुछ वेरीफाई कर सकेंगे. सो उससे क्या होगा, रीजनिंग स्किल्स भी उनकी इनहांस हो जाएंगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज enables the students to come to certain conclusion. Obviously ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग इंडक्टिव मेथड के अंदर पढ़ रहे हैं कि बच्चे को कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो डिराइव करना है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडक्टिव मेथड. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस डेवलप्स द क्यूरियोसिटी. इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और वो उनको क्या हेल्प करेगी, बहुत सारे लॉज, प्रिंसिपल्स को खुद डिस्कवर करने में हेल्प करेगी. ऐसा नहीं है कि हम लोग हर लॉ को, हर प्रिंसिपल को खुद से एक्सेप्ट कर ले कि जैसे बताया गया बिल्कुल वैसे ही रट लिया, क्रैम कर लिया. सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस. स्पेशली जब हम लोग इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चा डिस्कवरी करता है, इनोवेशन करता है, अपने क्रिएटिव पावर्स को यूज करता है. नेक्स्ट पॉइंट सेज लर्निंग बाय डूइंग. यहाँ पे बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, लर्न करता है बाय
डूइंग इट, अपने आप करता है, फिर उस चीज़ को लर्न करता है. सो दीज आर ऑल द मेरिट्स हियर ऑफ द इंडक्टिव मेथड. लेट्स कम टू द डीमेरिट्स. अब ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. ऐसा नहीं है कि हम लोग हर क्लास के अंदर ये मेथड कैरी फॉरवर्ड कर सके. सो स्पेशली अगर हम लोग जूनियर क्लासेस की बात करें तो बच्चों की प्रोफिशिएंसी जो है वो इतनी मैच नहीं करती है. इन दैट केस बच्चे जो है वो नहीं कर पाएंगे, कंक्लूजन को डिराइव नहीं कर पाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग कंक्लूजन्स के ऊपर आके रुक जाए. सो दिस इज नॉट suitable for the junior classes either. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लेबोरियस वर्क. लेबोरियस का मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्रोसेस एक रिक्वायर करेगा, जो कि हर बच्चे की प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली मैच नहीं होगा, मेंटल एज के अकॉर्डिंगली मैच नहीं होगा. नॉट पॉसिबल टू यूज़ दिस मेथड फॉर ऑल द टॉपिक्स इन इंग्लिश. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर मेथड के लिए अप्लाई किया जा सके. सो इंग्लिश में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए हम लोग इंडक्टिव मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे हमें लॉज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट फॉर द एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स. अगर हम लोग एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर एक मेंटल रिटार्डेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इन दैट केस उस बच्चे का मेंटल लेवल जो है वो इतना स्टेबल नहीं है ताकि वो ये इंडक्टिव मेथड को कर सके. सो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दो स्टूडेंट्स टू डू सच एन एक्टिविटी इन द क्लास. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स में कम टू डिफरेंट कंक्लूजन्स. ये हमने डिस्कस किया है. द लास्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन में लूज इंटरेस्ट. कई बार ऐसा होता है इंडक्टिव मेथड इज क्वाइट लॉन्ग, बहुत लंबा प्रोसीजर है. ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर बच्चा जो है एग्जाम्पल्स पढ़ भी लेगा, ऑब्जर्व भी कर लेगा, एनालाइज भी कर लेगा, जनरलाइज भी कर लेगा. दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ एवरेज किड. तो ऐसे में क्या होगा कि उनको बहुत सारे दिन लग जाएंगे इंडक्टिव मेथड को वाकई ही कंक्लूजन तक आने में. सो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट जो होगा वो लूज हो सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी inductive method. Here let's come to the second method which is deductive method. और inductive method का बिल्कुल रिवर्स होता है deductive method. inductive method में हमने पढ़ा था कि टीचर्स अपने आप एग्जाम्पल्स देती है और एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो क्या फॉर्म करेंगे, प्रिंसिपल्स फॉर्म करेंगे. बट डिडक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को एक लॉ प्रोवाइड कर देगा जिसके हेल्प से बच्चा जो है वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करके देखेगा और चीज़ों को वेरीफाई कर सकेगा. सो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है. इसमें क्या लिखा गया वो पढ़ते हैं. इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू एक्सेप्ट द जनरलाइज्ड ट्रूथ. तो उनको बोला जाता है कि जो चीज़ आपके सामने है, जो प्रिंसिपल आपको टीचर बता रही है, आपको उसी को ही कॉपी डाउन करना है, उसी को ही मेमोराइज करना है, क्रैम करना है, रोट लर्निंग करनी है, और उसी के थ्रू जो है आप क्या करेंगे, आप अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी एक मैथ्स के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा जो है उस फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करेगा और एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको वेरीफाई कर सकेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज द डिडक्टिव मेथड. बट अगर टीचर क्या करती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करती है पहले बच्चे को, एंड देन शी कम्स टू एन पर्टिकुलर कंक्लूजन, तो उस केस में क्या होगा, वी आर मेकिंग यूज ऑफ द इंडक्टिव मेथड. द नेक्स्ट पॉइंट सेज द टीचर प्रेजेंट्स द जनरल प्रिंसिपल बिफोर द स्टूडेंट्स. यहाँ पे टीचर क्या करेगी, एक जनरल प्रिंसिपल, एक फॉर्मूला बता देगी बच्चों को, ताकि बच्चे उस फॉर्मूला को क्रैम कर सके और आगे जाकर यूज कर सके, एप्लीकेट कर सके. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ यूजिंग दिस मेथड, एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स. भले ही कैसा भी बच्चा हो, इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, कोई भी बच्चा होगा आपकी क्लास में, वो इस आसानी से मेथड को अडॉप्ट कर पाएगा और इस मेथड को यूज करके अपने सभी प्रॉब्लम्स का आंसर कर पाएगा सॉल्व. नेक्स्ट पॉइंट इज लेस बर्डन ऑन द टीचर्स. टीचर्स के ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं होता एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव मेथड, जहाँ पे टीचर को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा एग्जाम्पल्स देने से पहले. कोई भी एक्सेप्शनल एग्जाम्पल अभी टीचर नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे. सो ऐसे केस में टीचर को ज़्यादा सोचना पड़ता है इंडक्टिव केस में. बट डिडक्टिव केस में क्या होता है, बच्चों को, टीचर्स को ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता. टीचर जो है उसके ऊपर लेस बर्डन होता है, उसे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना है, फॉर्मूला देना है, और उसकी हेल्प से बच्चा जो है वो आगे स्टडी करेगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मोर एप्लीकेबल फॉर जूनियर किड्स. मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये इंडक्टिव मेथड के अंदर. इंडक्टिव मेथड जो है वो जूनियर बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता, पर जूनियर बच्चों के लिए क्या सूटेबल हो सकता है, डिडक्टिव मेथड सूटेबल हो सकता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग द रॉन्ग आंसर्स. यहाँ पे बच्चों के पास कोई ऐसा चांस नहीं है जिससे कि वो क्या कर सके, एक गलत आंसर डिराइव कर सके. कंक्लूजन्स बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं इंडक्टिव मेथड के अंदर, बट डिडक्टिव जो होता है उसके अंदर क्या होगा, बच्चे जो है वो अलग अलग आंसर्स नहीं फाइंड करेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज मोर सूटेबल फॉर प्रैक्टिस. बच्चों को प्रैक्टिस की नीड होती है और प्रैक्टिस देने के लिए हमें डिडक्टिव मेथड का यूज करना ही पड़ता है. नाउ लेट्स कम टू द डीमेरिट्स ऑफ द
डिडक्टिव मेथड एनकरेजेस क्रैमिंग, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है रोट लर्निंग का रोल है। यहाँ पे बच्चा जो है वो फॉर्मूलाज को क्या करेगा, क्रैम करेगा और उसके बाद उसे यूज़ करेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्यूपल्स डू नॉट गेट सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज, यहाँ पे बच्चे जो है वो सेल्फ लर्निंग नहीं करते हैं। यहाँ पे उन्हें क्या किया जाता है, उनको पुश किया जाता है, बार बार टीचर के थ्रू बताया जाता है कि आपको ये मेथड यूज़ करना है, वो फॉर्मूला यूज़ करना है, और इसके थ्रू बच्चा जो है वो सीखता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज टेम्पररी, इंडक्टिव मेथड के अंदर क्योंकि हम डिस्कवरी करते हैं तो बच्चे को ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है अपनी नॉलेज, जबकि क्या होता है डिडक्टिव मेथड के अंदर इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, टेम्पररी नॉलेज होती है। द लास्ट पॉइंट हियर इज सेल्फ डिपेंडेंस को ये लीड करता है, यानी कि बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है अपनी टीचर्स के ऊपर और उन फॉर्मूलाज के ऊपर। बच्चा जो है वो सेल्फ डिस्कवर नहीं कर पाता कोई भी चीज़ को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडक्टिव एंड द डिडक्टिव मेथड। सो now let's come to the next method, and before that I would request you all to please share my video and also like, subscribe to my channel. So yeah, I am now going to start with the next method, which is, okay, I would take a second for that. Yes, let's come to the cooperative learning here, that is also called as the constructive learning. तो cooperative से आपको क्या समझ में आता है, हम लोग जब एक ग्रुप में बैठ के लर्निंग करते हैं, कोऑपरेटिवली लर्निंग करते हैं, साथ में बैठ के करते हैं। अब ऐसी लर्निंग कैसे पॉसिबल है, पीयर ग्रुप्स के अंदर पॉसिबल है, फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर पॉसिबल है। सो लेट्स लर्न अबाउट द कोऑपरेटिव लर्निंग हियर। इट मीन्स लर्निंग बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच अदर इन द ग्रुप्स। यहाँ पे बच्चे कैसे लर्न करते हैं, एक दूसरे से लर्न करते हैं। सो इन दिस काइंड ऑफ मेथड यहाँ पे बच्चे अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उस ग्रुप के अंदर बैठ के लर्न करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स लर्न इन कोलैबोरेशन विद वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं और लर्न करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पीयर लर्निंग, राइट। दे शेयर ऑल देयर इन्फॉर्मेशन अमंग देमसेल्व्स एंड हेल्प ईच अदर इन गिविंग द नॉलेज, एक दूसरे को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एक बच्चे को कुछ पता होता है, दूसरे को कुछ, तो वो आपस में नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द कोऑपरेटिव लर्निंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, ईच फॉर ऑल, ऑल फॉर ईच। ईच फॉर ऑल मतलब एक इंसान जो है, एक पीयर जो है वो सबके लिए अवेलेबल है और सारे पीयर्स जो है वो उस एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, यानी कि वो सब क्या करते हैं, आपस में नॉलेज को शेयर करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी इन विच द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंगेज इन द वेराइटी ऑफ यूजफुल लर्निंग एक्टिविटीज इन अ कोऑपरेटिव वे एंड अ टीम। यहाँ पे बच्चों को सोशल ग्रुप्स जो होते हैं वो फॉर्म करवाए जाते हैं, ग्रुप गोल्स होते हैं और क्वालिटीज बहुत सारी डेवलप होती है विद द हेल्प ऑफ अ कोऑपरेटिव लर्निंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज अ लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये ना तो टीचर सेंटर्ड है ना ही कंटेंट सेंटर्ड है। यहाँ पे हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, एक लर्नर के ऊपर ही करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ मोर एम्फसाइजिंग ऑन द सोशल लर्निंग। हम लोग यहाँ पे सोशल लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर दैन ऑन द लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो साइमल्टेनियस चलती रहती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली हमारे लिए क्या है, यहाँ पे सोशल लर्निंग स्किल्स जो है हम लोग ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा क्या कर सके, सोशली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके अपने पीयर्स, नेबरहुड, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ। द नेक्स्ट पॉइंट इज, पीपल्स लर्न फ्रॉम ईच अदर कोऑपरेटिवली। यहाँ पे ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द रोल ऑफ अ टीचर। यहाँ पे टीचर का रोल जो होता है वो खाली एक सब्जेक्ट टीचर की तरह से नहीं होता है। यहाँ पे टीचर का जो रोल होता है वो एक सुपरवाइजर की तरह भी होता है, एक फ्रेंड की तरह भी होता है, एक फिलोसोफर की तरह भी होता है। बहुत सारे रोल्स प्ले होते हैं जब हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं। द लास्ट पॉइंट हियर इज इंटरैक्टिव एंड कंडक्टिव क्लासरूम। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लासरूम प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होता है उस क्लास में, बट ऑब्वियसली क्योंकि हम सोशल स्किल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एजुकेशन फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसिप्लिन जो होता है उसका थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है और सोशली जो है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करता है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरिट्स है इस मेथड के। लेट्स लर्न अबाउट द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। यहाँ पे डेमोक्रेसी को बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। एक इंसान, एक पीयर जो है वो दूसरे पीयर को रिस्पेक्ट करना सीख जाता है। दैट मीन्स वो डेमोक्रेसी को समझना शुरू हो जाते हैं। दिस लीड्स टू बेटर लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से लर्न करते हैं तो हमारे अंदर हेजिटेशन जो होती है वो बहुत ही कम होती है। हम जो भी डाउट्स होते हैं वो आसानी से पूछ पाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस इज लेस थियोरेटिकल एंड मोर प्रैक्टिकल। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोशल स्किल्स यूज हो रही है। सो इन दैट केस क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकली मूव कर रहे हैं, सिचुएशनली मूव कर रहे हैं।
द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्दी इंटरैक्शंस को ये लीड करता है, क्योंकि बच्चों के बीच में इंटरैक्शंस है तो वो ऑब्वियसली हेल्दी होंगे। ये ग्रुप जो होता है, एक मेथड जो होता है, ये इसलिए नहीं होता ताकि हम कंपटीशन को इन्हांस कर सकें। नो, ऑब्वियसली नॉट फॉर दैट। वी आर एनहांसिंग द सोशल स्किल्स ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो प्रमोटिंग द हेल्दी इंटरैक्शंस इन द क्लास। द लास्ट पॉइंट हियर इज टू प्रमोट द सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा खुद से लर्न कर पाता है, खुद अपनी नॉलेज जो है दूसरों के साथ शेयर कर पाता है, इन दैट केस बच्चा जो है अपना सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम को बिल्ड कर पाता है। द डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड आर, अब डीमेरिट्स भी होते हैं हर एक मेथड के। सो व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग दिस मेथड? सबसे पहला है हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चाइल्ड। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को सब कुछ आ जाएगा ऑल ऑफ अ सडन, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो हाई एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत बड़ी डीमेरिट है इस मेथड के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोर स्ट्रेस इज ऑन द सोशल स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर बहुत ही कम स्ट्रेस होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि हमें एकेडमिक्स के ऊपर भी इक्वली ध्यान देना होता है। The last point here is every child is accountable for his or her performance। यहाँ पे हर बच्चा जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होता है। सो अभी जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो हर बच्चा जो है ग्रुप में इक्विवेलेंट नहीं सीख सकता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में जो है डिस्ट्रैक्टिव फील करते हैं, वो लर्न नहीं कर पाते। सो इन दैट केस उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिमेरिट प्रूफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग दिस मेथड। ये प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं जिसके बेसिस पे ये मेथड बना गया है? सो फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि प्यूपल्स जो है वो ओरिजिनलिटी लेकर आते हैं, खुद एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर देयर ओन थिंग्स। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज लेकर आ रहा है, ऑब्वियसली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एंड सेकेंडली वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है अपनी खुद की लर्निंग के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि ये मेथड जो है एंटायरली किसके ऊपर वर्क करता है? सोशल स्किल्स के ऊपर वर्क करता है। दिस लीड्स टू लीडरशिप क्वालिटीज। हर बच्चा जो है वो अपने आप में लीडर बन जाता है। हर बच्चा सीखता है कि हाँ, मुझे कैसे दूसरों को कंट्रोल करना है, कैसे किसी को इन्फॉर्मेशन बतानी है और अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एकेडमिक एंड सोशल पर्पस। तो यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग जो होती है बच्चों की साइमल्टेनियसली, वो एकेडमिक्स के लिए तो होती ही होती है, साथ में सोशल पर्पसेस के लिए भी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एंड द कोऑपरेटिव लर्निंग। कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड विच इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। सो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ही लेमैन वर्ड है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कम्युनिकेशन जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से डिराइव है। उसका जो लैटिन वर्ड है वो है कम्युनिस। कम्युनिस वर्ड से डिराइव है जिसका मतलब है टू शेयर। शेयर का मतलब आपस में एक्सप्रेस करना। सो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज एंड थॉट्स टू अदर पीपल, या फिर एक्सचेंजिंग आवर आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर पीपल। तो ये होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। द मेन फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज टू एक्सप्रेस एंड कम्युनिकेट द आइडिया। हम सबको पता है जब हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो हमारा मेन आइडिया क्या है कि हम एक्सप्रेस कर सके किसी के भी सामने अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को। जो भी हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में चल रहा है, उसे अगर हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, वही एक लैंग्वेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। हमें लैंग्वेज भले ही कितनी क्यों ना आती हो, हमें जितनी मर्जी वोकैब आती हो, ग्रामर आती हो, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़। क्यों नहीं है वो यूज़ की? जब तक हम लोग उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते तब तक वो किसी भी यूज की नहीं है। द नेक्स्ट थिंग हियर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो होता है फीडबैक और दूसरा होता है इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन तब होगा जब हम लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और फीडबैक हमें तब मिलेगा जब हम अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। सो यहाँ पे ये दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स मतलब कि हम अपनी बात को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन हियर इज स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग और लिसनिंग, सबसे पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट चैनल। द सेकेंड वन इज रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले रीड करेंगे, उसी चीज़ को रिटन वे में भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पत्र लेखन होता है, लेटर राइटिंग होता है, या फिर स्टोरी राइटिंग होता है, नरेशन भी हो सकता है स्पीकिंग पर्पसेस के लिए। एंड द थर्ड चैनल हियर इज विजुअल एंड ऑब्जर्विंग। विजुअल एंड ऑब्जर्विंग का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्विंग का मतलब है जब हम लोग किसी चीज़ को वन वे के थ्रू देख सकते हैं, पर उसे हम लोग अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हियर। ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। टेलीविजन जो है इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि हम लोग TLM के तौर पर क्लासरूम्स में भी यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर हम जो है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक टेलीविजन के सामने, एंड दिस इज ओनली फॉर द विजुअल पर्पसेस। हम लोग ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करते हैं और उस चीज़ को लर्न कर लेते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द सेलिएंट फीचर्स. सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं इस मेथड के, कम्युनिकेटिव अप्रोच के, उसके बारे में स्टडी करते हैं. सबसे पहले तो ये है कि अगर हम लोग अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हम लोग सोशल स्किल्स को इन्हांस कर पाएंगे. सेकेंडली हमारे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. सेकेंडली हमारे अंदर क्या होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन भी आएगा. सो इससे क्या होगा, हम लोग और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे. दिस इज द थर्ड पॉइंट, दैट वी फील मोटिवेटेड एंड एनकरेज टू यूज आवर लैंग्वेज स्किल्स एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ सोशल गैदरिंग्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज सिचुएशनल, मीनिंगफुल एंड सेल्फ रिवॉर्डिंग. क्या होता है, जब हम लोग अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी के सामने तो वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट की बात होती है, एक सेल्फ रिवॉर्डिंग टेक्निक होती है, जिससे कि क्या होता है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एन इंडिविजुअल फील सेटिस्फाइड एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है. क्यों हो जाता है हैप्पी, क्योंकि वो अपने आप को सही से एक्सप्रेस कर पा रहा है. एंड लास्ट पॉइंट हियर इज, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल मेथड. तो ये एक प्रैक्टिकल मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग खुद अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो जब खुद हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, तो हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें डेवलप होंगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कम्युनिकेटिव मेथड और द अप्रोच. कम्युनिकेटिव मेथड के जो भी हम लोगों ने अभी सैलिएंट फीचर्स पढ़े हैं, यही इसके एडवांटेजेस भी है. सो वी कैन पुट इन बोथ द थिंग्स टुगेदर. तो मेरिट्स और एडवांटेजेस, मेरिट्स एंड सैलिएंट फीचर्स जो है वो दोनों के दोनों सेम है. यू कैन पॉइंट और यू कैन कलेक्ट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम हियर एंड पुट इट इन द एडवांटेजेस ऑल्सो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कम्युनिकेटिव मेथड. Yeah, so coming back to the next method here, which is the direct method. We have already started about 4 things here. सबसे पहले हमने पढ़ा था inductive method के बारे में, second हमने पढ़ा था deductive method के बारे में, third one was the cooperative learning, the fourth one was the communicative approach. अब हम लोग पढ़ेंगे direct method के बारे में, जो कि हमारा 5th method है इस वीडियो के अंदर. So direct method के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग स्पेशली ये direct method का यूज़ करते हैं कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए. सपोजिटली हम इंडियंस की बात करते हैं, तो इंडियंस को अगर हम लोगों को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है, सपोजिटली इंग्लिश सिखानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास आया था डायरेक्ट मेथड, जिसका हम लोग शुरुआत से यूज़ करते हुए आ रहे हैं. एंड डायरेक्ट मेथड की हेल्प से वी कैन टीच एनी फॉरेन लैंग्वेज टू दी पीपल, या फिर सेकेंड लैंग्वेज भी हम लोग टीच कर सकते हैं. विच इंसिस्ट दैट द ओनली द टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन द क्लास एंड द मीनिंग शुड बी डायरेक्टली कम्युनिकेटेड यूजिंग द एक्शंस एंड द जेस्चर्स. यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होती है कि डायरेक्ट मेथड के अंदर वी कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ आवर मदर टंग. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम लोग अपने मदर टंग को यूज़ नहीं कर सकते. मतलब कि अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो आई हैव टू कीप ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली, आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश only, you have to hear me in English, you have to understand me in English, you also have to speak it in English. तो यहाँ पे खाली इंग्लिश 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 यही चलता रहेगा. नो हिंदी, नो मदर टंग विल बी यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड. तो यहाँ पे ये चीज़ का फोकस सबसे ज़्यादा होता है कि फॉरेन लैंग्वेज को जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक बच्चे का एक्सपीरियंस और उसके जो एक्सप्रेशंस है वो दोनों के दोनों मैच हो सके. मतलब कि जो वो सोच रहा है वो इंग्लिश में ही सोचेगा और उसे एक्सप्रेस भी कैसे करेगा, इंग्लिश के अंदर ही करेगा. सो दिस इज द मेन आइडियोलॉजी of this method. दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट मेथड या फिर नेचुरल मेथड. इसको क्या बोला जाता है, एक नेचुरल मेथड बोला जाता है. क्यों बोला जाता है इसे नेचुरल मेथड, बिकॉज इसमें हम लोग क्या एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो हम सोचेंगे वही हम बोलेंगे. अगर हम हिंदी में सोचेंगे तो हम हिंदी में बोलेंगे, अगर हम लोग इंग्लिश में सोचेंगे या फिर कोई भी सेकेंड लैंग्वेज में सोचेंगे तो हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसी लैंग्वेज टोन में यूज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे. इट इज़ दिस मेथड इन विच द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू लर्न द न्यू लैंग्वेज इन एन ओरल मैनर. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है ओरल मैनर के ऊपर. यहाँ पे हम कोई भी फोकस नहीं करते हैं राइटिंग के ऊपर. सो यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी मेरे ख्याल से यही आता है कि हम लोग ओरली सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल से कि वो एक्सप्रेस भी कर सके, एक्सपीरियंस भी कर सके और ओरली उसे एक्सप्रेस कर सके. सो दिस इज नॉट फेयर इन ऑल द केसेस. एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं हम लोग कि उसके पास इतनी वोकैबुलरी भी नहीं होगी, ना ही वो यूज़ कर पाएगा उस वोकैबुलरी को बार बार, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं प्रोफिशिएंसी की प्रॉब्लम है. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज इट एस्टैब्लिशेस द एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस एट द एक्सप्रेशन। ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे एसोसिएशन होता है हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे एक्सप्रेशन के बीच में, यानी कि जो हम सोचेंगे वही हम बोलेंगे। हमें सोचना भी कैसे है, इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना है, और उसे एक्सप्रेस भी कैसे करना है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही करना है। एम क्या होता है एक डायरेक्ट मेथड का, उसको जान लेते हैं कि हम चाहते हैं यहाँ पे बच्चा कैसे सोचे, इंग्लिश लैंग्वेज में सोचे। सो द फर्स्ट एम हियर इज pupils think in English language. The next point is express their thoughts in English language. Again, the third point is to enable them to listen and read in English. हमारा मेन एम्फेसिस यहाँ पे यही है कि वो जो सुन रहे हैं वो भी इंग्लिश में सुने, जो बोल रहे हैं वो भी इंग्लिश में बोले। सो लिसन, स्पीक एंड रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर डायरेक्ट मेथड जो है वो बेस्ड है, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ओरल मेथड। ओरल मेथड है क्योंकि हम खाली इसमें क्या फोकस कर रहे हैं, ओरली फोकस कर रहे हैं। वी वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा वोकैबुलरी गेन कर सके और क्या कर सके, उसे ओरली एक्सप्रेस कर सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर। क्या बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग वर्ड्स और मीनिंग्स के साथ? अगर मैं आपको ऑल ऑफ अ सडन बोलती हूँ टेबल, टेबल जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में एक कोई ना कोई पिक्चर क्लिक होती है, एक मीनिंग समझ में आता है। टेबल का क्या मतलब है, मेज़ है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें एसोसिएटेड है, हमें समझ में आ चुकी है, बिकॉज वी आर टीचर्स, हम लोग थोड़े से ग्रोन अप्स है, हमारे लिए ये चीज़ समझना बहुत ही आसान है। बट एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको ये वर्ड और मीनिंग के एसोसिएशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। डे टू डे वर्ड्स तो वो आराम से यूज़ कर पाता है, बट कहीं ना कहीं जब उसके सामने हम लोग न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स रखते हैं तो उसे एसोसिएट करने में उसे टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारा मेन एम यही होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को एसोसिएट करते हैं एक बच्चे के लिए। द थर्ड पॉइंट हियर इज इनहिबिशन ऑफ द मदर टंग। हम लोग मदर टंग का यूज नहीं कर सकते इस मेथड के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। यहाँ पे हम बच्चों के ऊपर एक तरह से क्रैमिंग जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। मे आई गो टू द वॉशरूम। एक बच्चे को शुरुआत से ये बात समझा दी जाती है, उसे भले ही 4th-5th क्लास में जाके समझ में आता हो मे आई गो टू द वॉशरूम का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्रैमिंग को हम लोग बोल रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोग क्या एम्फेसिस दे रहे हैं कि हम लोग पूरे सेंटेंस के ऊपर फोकस करें रादर दैन अ सिंगल वर्ड। अगर मैं एक बच्चे को बोलती हूँ मे आई यूज़ द रेस्ट रूम बोलना शुरू करे, तो वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं बोलना शुरू कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके दिमाग में बहुत पहले से ये बात बैठी हुई है, एक सेंटेंस बैठा हुआ उसके दिमाग में कि मुझे क्या बोलना है, मे आई गो टू द वॉशरूम ही बोलना है। तो एक न्यू चीज़ लेकर आने में ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे फंक्शनल ग्रामर के ऊपर फोकस किया जाता है, फॉर्मल ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल ग्रामर क्या होता है, फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉर्मल ग्रामर क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग पूरी प्रॉपर बुक्स अलॉट करते हैं और बच्चे को अलग से सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाते हैं, फॉर्मल ग्रामर होता है। अगर हम लोग साइड बाय साइड लैंग्वेज जब पढ़ा रहे हैं, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन कोई ग्रामर का टॉपिक ले आता है, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। तो अभी आपने देखा होगा आजकल जो है फंक्शनल ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है सभी स्कूल्स के अंदर। तो हर स्कूल जो है वो फंक्शनल ग्रामर को फोकस करने लगा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन मेथड। यहाँ पे टीचर जो होता है वो क्वेश्चन जो है पुटअप करता है और बच्चों से आंसर एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि एक टीचर जो है एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा दैट यू आर इन अ मार्केट, यू वांट योर मदर टू परचेज सर्टन थिंग फॉर यू। तो आप क्या सेंटेंस बोलोगे एट दैट मोमेंट? तो आपको वो सेंटेंस जो है वो प्रोनाउंस करना है, वो बोलना है, अपनी टीचर के सामने एक्सप्रेस करना है विद इन द सेकेंड लैंग्वेज ओनली। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो प्रोवाइड की जाती है टीचर के बिहाफ पे, ताकि बच्चा जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके और एक्सप्रेस कर सके इन द सेकेंड लैंग्वेज ओनली। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग द डायरेक्ट मेथड इन द क्लास। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले ये एक नेचुरल मेथड है, जैसे बच्चा लर्न करेगा वो आगे जाके वैसे ही उसे प्रोनाउंस भी कर पाएगा। द नेक्स्ट थिंग हियर इज फैसिलिटेट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। इससे क्या होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख पाता है। द थर्ड पॉइंट हियर इज सूटेबल फॉर टीचिंग द ईडियम्स। यहाँ पे अगर हमें बच्चे को कोई भी ईडियम सिखाना है तो वो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो सकती है। क्यों हो सकता है आसान? जैसे कि अभी हम लोग एक इडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, टू बीट अ डेड हॉर्स। टू बीट अ डेड हॉर्स जो है वो क्या है, एक ईडियम है। यहाँ पे हम लोग बच्चों को डायरेक्टली बता सकते हैं इसका क्या मतलब होता है। टू बीट अ डेड हॉर्स का क्या मतलब हुआ, ऑल एफर्ट्स इन वेन। तो इस तरीके से इस टाइप की चीज़ों को अगर हमें एम्फोसिस करना है, ईडियम्स को एम्फोसिस करना, वो कैप को करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो कमिंग हियर टू द नेक्स्ट पॉइंट विच सेज कि हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे करते हैं, ओरल वर्क के ऊपर करते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी एम्फेसिस किस पे नहीं होता, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर नहीं होता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है, और ओरल वर्क के ऊपर क्योंकि एम्फेसिस होता है तो ये हमारा एडवांटेज भी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट मेक्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश ईजी। यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश को सिखाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, आगे जाकर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट एस्टैब्लिशेस द डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द एक्सपीरियंस
सेंटेंस एंड द एक्सप्रेशन। ये तो बार बार हम लोग कर रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रैमिंग को यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है, हम लोग अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। द लास्ट पॉइंट इज ये डेवलप करता है हमारी लिंग्विस्टिक स्किल्स को, यानी कि स्पीकिंग एंड रीडिंग को हम लोग एम्फेसिस देते हैं यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। द नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे होता है, ओरल मेथड के ऊपर होता है, बाकी चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस नहीं होता। तो सारी लिंग्विस्टिक स्किल्स को डेवलप करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कम टीचर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कम स्किल्ड टीचर्स हैं जो कि खाली इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, खाली इंग्लिश बोल सकते हैं अपनी पूरी क्लास में पूरा टाइम। तो यहाँ पे ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो स्किल्ड टीचर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। द नेक्स्ट पॉइंट सेज कैन नॉट बी यूज फॉर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो मेथड है वो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन बच्चों को ऑल ऑफ ए सडन जो है वो नहीं समझ में आएगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। द लास्ट पॉइंट इज ये एक्सपेंसिव होता है मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमें टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ता है और उन्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि वो अपनी टीचिंग लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा एम्फेटेटिक बना सके और क्या बना सके, इफेक्टिव कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्ट मेथड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज द बायलिंगुअल मेथड। सो लेट्स स्टडी अबाउट द बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल से क्या समझ में आता है, बाय मीन्स टू, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज। दो लैंग्वेजेस का यूज जब हम लोग साइमल्टेनियसली करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, बायलिंगुअल मेथड कहेंगे। बाय का मीनिंग होता है टू, तो यहाँ पे टू लैंग्वेजेस यानी कि हमारा मदर टंग एज वेल एज हमारी द टारगेटेड लैंग्वेज जो होती है, इंग्लिश हो गई या फिर कोई और लैंग्वेज जो है वो हम लोग सीख पाते हैं। अब बायलिंगुअल मेथड जो है वो किसने प्रपोज किया था, डॉटसन ऑफ वेल्स। किसने किया था, डॉटसन ऑफ वेल्स ने ये प्रपोज किया था मेथड। और उन्होंने क्या किया था, इसमें हम लोग दो लैंग्वेजेस का यूज करते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे कि अगर हमें इंग्लिश सिखानी है बच्चों को तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मदर टंग का यूज कर सकते हैं, हिंदी का यूज कर सकते हैं। So this is all about the bilingual method. Coming to the next point of this method, यहाँ पे टीचर्स जो है वो क्या कर सकती हैं, बायलिंगुअल मेथड के थ्रू हिंदी का यूज़ कर सकती है और बच्चों को सिचुएशन से अवगत करवा सकती है, अवेयर करवा सकती हैं। यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मदर टंग के बारे में भी पता चलेगा और दूसरी लैंग्वेज को लर्न करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस जो है वो साइमल्टेनियस चलेगी। बच्चे को हम लोग क्या सिखाते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस सिखाते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट यूनिट होती है। द लास्ट पॉइंट हियर इज इट इज़ द मीडियम ऑफ लर्निंग अननोन लैंग्वेज। ये एक मीडियम बन जाता है हमारे लिए कि हम लोग क्या कर सके, एक अननोन लैंग्वेज जो होती है उसे लर्न कर सके। यहाँ पे दो मैक्सिम्स को फॉलो किया जाता है, दो ऐसे रूल्स है जो कि ये मेथड जो है वो अडॉप्ट करता है। नंबर वन रूल जो है वो कहता है कि टीचर जो है वो अकेले मदर टंग का यूज़ करेगी। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स भी मदर टंग का यूज़ करेंगे इस मेथड में। इट इज़ ओनली द टीचर हु इज़ गोइंग टू यूज़ द मदर टंग while explaining the things in case the children are going to face any kind of difficulty while learning this method. The next point is students are given ample amount of oral practice. अब बच्चों को बहुत सारी ड्रिलिंग करवाई जाती है, रेपिटेशन करवाया जाता है थ्रू चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, किसी भी थ्रू करवा सकते हैं हम लोग। और ओरल प्रैक्टिस के ऊपर हमारा मेन एम्फेसिस होता है। इंपॉर्टेंस हम लोग किसको देते हैं, ओरल प्रैक्टिस को देते हैं इस मेथड के अंदर। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस, सबसे पहला ये है कि एक्यूरेसी आ जाती है एक इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मदर टंग का भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग कोई ना कोई चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली पढ़ा पाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योर्स द फ्लुएंसी। यहाँ पे क्या होता है, ओरल मेथड जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बच्चा बार बार कोई ना कोई चीज़ को बोलकर सीख पाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेव्स द टाइम। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट मेथड की तरह नहीं है जहाँ पे हम लोगों को बार बार सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़े। तो क्या होगा इस केस में कि हम लोग टाइम को सेव कर पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज सूट्स फॉर द एवरेज टीचर ऑल्सो। तो यहाँ पे स्किल्ड टीचर के साथ साथ एवरेज टीचर जो होती है वो भी इस मेथड के थ्रू क्या कर सकती है, इंग्लिश को पढ़ा सकती है। द लास्ट पॉइंट इज दिस इज लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होगा, हमें स्किल्ड टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी रखनी पड़ेगी, पूरी प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी देने पड़ेंगे, टीचिंग एड्स भी देने पड़ेंगे। तो हर तरीके से एक तरह से हमारे पास क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेंस आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है बायलिंगुअल मेथड के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा लेस कॉस्टली होता है, और या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ अ चीप मेथड। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। लेट्स नो अबाउट द डिसएडवांटेजेस हियर। कंफ्यूजेस द स्टूडेंट्स बिटवीन द टू लैंग्वेजेस। यहाँ पे बच्चा जो है कई बार हेजिडेंट हो जाता है, समझ में नहीं आता, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार दो चीज़ों के बीच में कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उस चीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो कई बच्चे जो है उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल हो सकती है मदर टंग को यूज़ करने में। कई बार टीचर्स क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदर टंग यूज़ करना शुरू कर देती है और सेकंड लैंग्वेज के ऊपर कम फोकस करती हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ होता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट, जहाँ पे बच्चा जो है ज़्यादा एम्फोसिस क्या करता है, मदर टंग को लर्न करने में लगा देता है और कम एम्फोसिस जो है वो कहाँ पे लगाता है, लैंग्वेज लर्निंग में लगाता है। द फोर्थ पॉइंट हेयर इज डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है, क्योंकि हम लोग बार बार इंग्लिश को कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदी में, तो इससे क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाइलिंगुअल मेथड। अब इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ लिए, आई गेस 6 मेथड्स हो गए हैं हमारे पास। सो प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ ऑल दीज मेथड्स। इसके अलावा जितनी भी अप्रोचेज और मेथड्स आई वुड बी क्रिएटिंग अ सेकेंड वीडियो फॉर ऑल द वीडियोज, फॉर ऑल द मेथड्स एंड अप्रोचेज। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दोज वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू so much for watching my video. Please subscribe to my channel Success Drivers by Deepti. Bye bye.